Students, today we will discuss chapter 3, and the title of this chapter is Our Dams, the Temples of Modern India, and this is written by Arundhati Roy. First of all, we have to look at the title itself, and it is in the question form. The question is, Are dams the temples of modern India? So you have to think about it. What are dams, and what is your opinion about them? Why dams are built, and what kind of effect they have on the lives of people and ecological system, the environment. For further discussion, we have to discuss in detail the chapter. And first of all, it is very important to know about the author and the essay. So, what is this essay all about? And is this written for the sole purpose of essay, or is it a part of a book? So, this essay is an excerpt from Arundhati Roy's The Algebra of Infinite Justice, for which she was awarded the Sahitya Academy Award in 2006. And very important information that you should know is this, that she declined the award protesting against governmental policies. So she just declined the award that was given to him for this book. Roy's first novel, The God of Small Things, won the Booker Prize in 1997. She is a renowned writer and committed social and environmental activist. बहुत ही प्रसिद्ध ये लेखिका हैं और अपने सामाजिक और पर्यावरण से संबंधित कार्यों के लिए भी ये जानी जाती हैं. This essay is a critique of the construction of big dams. So this essay is about big dams, and she presents a critique of big dams in this essay, and she puts his opinions in this essay, how dams have a negative impact on the lives of people, our environment, and the traditional modes of agriculture and all such activities. अभी हम जानते हैं कि क्या क्या है जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो हमें जानने ज़रूरी हैं और जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो इस ऐसे को समझना आपके लिए काफ़ी आसान होगा. सो द ऐसे बिगिंस with a reference to Jawaharlal Nehru's famous speech in which he claimed that dams are the temples of modern India. तो इस ऐसे की शुरुआत करती हैं अरुंधति रॉय जी जवाहरलाल नेहरू जी के एक प्रसिद्ध स्पीच के द्वारा, जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जो डैम्स हैं, जो बांध हैं, वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं. ये उन्होंने अपने स्पीच में कहा था. The very first line of this essay is, in the 50 years since independence, after Nehru's famous dams are the temples of modern India speech, one he grew to regret in his own lifetime, his foot soldiers threw themselves into the business of building dams with unnatural fervor. So in the very first line, she is very critical of the statement that was given by Jawaharlal Nehru ji. अरुंधति रॉय कंडेम्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, और वो आलोचना करती हैं बड़े बांध बनाने की. शी प्रेजेंट्स द डेटा ऑफ रेपिडली बिल्ट डैम्स इन इंडिया इन द 50 years सिंस इंडिपेंडेंस, और वो एक आंकड़े जो हैं वो आपके सामने रखती हैं कि आज़ादी के 50 साल के अंदर किस तरीके से बड़े बड़े बांध बनाए गए और बड़ी तेज़ी से बनाए गए. वो आंकड़े वो रखती हैं जिसमें सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े भी हैं. अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन, वी हैव 3,600 डैम्स दैट क्वालिफाई एज बिग डैम्स, 3,300 ऑफ देम बिल्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस. कि 3600 जो बांध हैं वो बड़े बांध बने हैं भारत में, जिसमें से जो 3300 हैं वो आज़ादी के बाद बनाए गए. ये आंकड़े वो इस ऐसे के अंदर देती हैं, जो कि वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन के का डेटा है. सम 1000 मोर आर अंडर कंस्ट्रक्शन, और 1000 से ज़्यादा जो हैं वो अभी
बन रहे हैं, बांध जो हैं वो बन रहे हैं। येट 1/5 of our population, 200 million people, does not have safe drinking water, and 2/3, 600 million, lack basic sanitation. And with the help of this data, she actually makes you aware of the fact that how these big dams are built in India, but most of the population, majority of people, they even lack basic sanitation. उनके पास जीवन को जीने के लिए जो स्वच्छता है या जो हाइजीन है, जिस तरीके से उन्हें ज़िंदगी जीनी चाहिए, वो बुनियादी सुविधाएं भी लोगों के पास नहीं हैं। पर भारत जो है वो बड़े बड़े बांध बनाने के लिए, आधुनिक भारत का निर्माण करने के लिए तैयार है, लेकिन जो आबादी है भारत की, वो बुनियादी सुविधाएं भी उस जनसंख्या को नहीं मिल पा रही हैं। दिस इज़ वॉट अरुंधति रॉय पुट्स इन दिस essay. She explains the environmental degradation and loss of traditional systems caused by dam building. और वो इस ऐसे में ये भी बताती हैं कि किस तरीके से जो पर्यावरण है उसके अंदर किस तरीके से कमी आ रही है, किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है, जो जिस तरीके का पर्यावरण हमारा होना चाहिए वैसा नहीं है। और ये किस वजह से है, ये बांध बनाने की वजह से। एक मेजर रीज़न वो बता रही हैं बांध को। एंड लॉस ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम्स कॉज्ड बाय डैम बिल्डिंग। और जो हमारे पारंपरिक तरीके थे हमारे जीवन जीने के या खेती करने के, वो भी बांध की वजह से, बांध बनाने की वजह से उन्हें भी हमने खो दिया है। एंड इट इज़ mentioned in this essay, not only did they build new dams and new irrigation systems, they took control of small traditional systems that village communities had managed for thousands of years and allowed them to atrophy. कि ये जो बड़े बड़े जिस तरीके से बिजनेस बना लिया गया बड़े बांध बनाना, और उससे ना सिर्फ उन्होंने छोटे बड़े बांध बनाए और सिंचाई के तरीकों को बदला, बल्कि जो छोटे और पारंपरिक तरीके थे गांव में, जिस तरीके से कम्युनिटीज़, जिस तरीके से लोग रहते थे और हज़ारों सालों से रहते आए थे, और वो अपने जल संसाधनों को मैनेज करते थे, उन जल संसाधनों को अपने तरीके से इस्तेमाल करते थे, वो जो हमारा पारंपरिक तरीका था वो भी हमने बांध बनाने के चक्कर में खो दिया। इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स, कि ये जो बड़े बड़े बांध हम बना रहे हैं इसके क्या आर्थिक और जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पर्यावरण से संबंधित है, वो किस तरीके से इससे प्रभावित हो रहा है। Arundhati Roy considers the big dams as undemocratic and government's way of taking water, land and irrigation away from the poor and gifting it to the rich. अरुंधति रॉय किस तरीके से देखती हैं बड़े बांधों को, कि ये प्रजातांत्रिक नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है, और सरकार का एक तरीका है पानी, हमारी भूमि और सिंचाई के तरीकों को गरीब लोगों से लेके उसे अमीर लोगों को देना। And in a sentence in this essay, it is written that they are a government's way of accumulating authority, deciding who will get how much water and who will grow what where. कि ये सरकार का तरीका है कि वो सारी अथॉरिटी अपने हाथ में ले ले और एक आम आदमी के हाथ में कुछ भी ना रहे, और फिर जो अमीर, जो पूंजीपति लोग हैं, वो पानी को, भूमि को और इन सारे संसाधनों को, सिंचाई के तरीकों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा दाम में वो फिर से उसे गरीब आदमी को बेचें। The big reservoirs made by blocking the water of a river fascinated a lot of people who even wrote poems on them. और अरुंधति रॉय आपको बताती हैं इस ऐसे में कि किस तरीके से जो बांध जब बनाए जाते हैं तो पानी को रोक लिया जाता है, और वो जो रुका हुआ पानी है वो बड़ी झील की तरह दिखाई देता है, जिससे लोग शुरू शुरू में बड़े प्रभावित हुए, फैसिनेट हुए, अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए उनकी तरफ, और लोगों ने उस पर
कविताएं तक लिख डाली। Ironically, huge populations of people had to leave their home due to them. और विडंबना क्या है कि उन्हीं झीलों के किनारे बैठकर कविताएं लिखी गई, लेकिन जो बांध बनाने और उस पानी को जो स्टोर करने के चक्कर में जिन लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, अपने परिवार जो है वो दूसरी जगह पे वो विस्थापित हो गए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल टुक प्लेस। अब उस चीज़ को बाद में लोगों ने समझा और उसको क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू किया। उसका विश्लेषण जब लोगों ने किया तो ये पाया कि ये जो बांध है, फिर लोगों ने सोचा, उसी स्पीच को, उसी स्टेटमेंट को अरुंधति रॉय आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं, उस पर ही विचार विमर्श करना चाह रही हैं कि आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि क्या बांध सही में ही आधुनिक भारत के मंदिर हैं। Dams cause floods, waterlogging, and salinity. There is mounting evidence that links big dams to earthquakes. और जो बांध हैं वो बाढ़ लाते हैं, उससे जो पानी है वो, उसका जल स्तर जो है, जो है भूमि के अंदर वो नीचे चला जाता है, और साथ में जो मिट्टी की जो समस्याएं हैं वो भी पैदा होती हैं कि मिट्टी जो है वो क्षारीय हो जाए, अम्लीय हो जाए, बहुत तरीके की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। देयर इज माउंटिंग एविडेंस दैट लिंक्स बिग डैम्स टू अर्थक्वेक्स। और अरुंधति रॉय ये भी आपको बताती हैं इस ऐसे में कि इस बात के भी प्रमाण हैं कि जो बड़े बांध हैं उनका अर्थक्वेक से यानी भूकंप से भी ताल्लुक है, उसकी वजह से भूकंप भी आते हैं। क्या कंक्लूजन है ये जो सारा, जिस तरीके से उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स, इस लॉजिक्स जो हैं इस ऐसे में अरुंधति रॉय देती हैं और वो एंड में लिखती भी हैं, और क्या कंक्लूजन इसका निकलता है। द लास्ट पैराग्राफ itself tells you about how she concluded this essay. The writer concludes that big dams have not really lived up to their roles as monuments of modern civilization. And how Arundhati Roy concludes it? She says that big dams are not the monuments of modern civilization because they have not really lived up to their roles as monuments. कि इनको आधुनिक भारत का, बांधों को आधुनिक भारत का स्मारक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्मारक क्या होता है वो आगे लिखती भी हैं कि स्मारक क्या होता है। Monuments are supposed to be timeless, but dams have an all too finite lifetime. कि स्मारक तो वो है, जैसे मंदिर है वो एक स्मारक की तरह आपकी स्मृतियों में एक काम करता है, और स्मारक क्या होता है जो समय की सीमाओं में बंधा नहीं है। लेकिन बांध जो हैं उनका तो एक निश्चित एक लाइफ टाइम है, एक निश्चित जीवन है, उसके बाद वो फिर से वो गिर सकते हैं। उनकी जिस तरीके से, जिस इंजीनियरिंग से उन्हें बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं किसी टाइम लिमिट के बाद वो ध्वस्त हो सकते हैं। द लोकल पेन फॉर नेशनल गेन मिथ हैज़ बीन ब्लोन वाइड ओपन। और बड़े ही सटीक तरीके से और बड़े ही क्लैरिटी के साथ अरुंधति रॉय ये कहती हैं कि जो एक तरीके का मिथ बनाया गया था, जो लोगों को समझाने की या उनके जहन में बसाने की कोशिश की जा रही थी कि लोकल पेन यानी आप थोड़ा बहुत खुद पेन ले लीजिए, क्षेत्रीय स्तर पर अगर किसी तरीके का दुख लोगों को महसूस करना पड़ रहा है या दुख से गुजरना पड़ रहा है और उससे राष्ट्र का विकास हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अरुंधति रॉय ये कहती हैं कि इतने विस्थापित हुए लोग और बांधों की वजह से जिस प्रकार से पर्यावरण में लगातार उसमें गिरावट आई है, उसने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि ये जो मिथ बनाया गया था लोकल पेन फॉर नेशनल गेन, ये पूरी तरीके से झूठ साबित हुआ है। उसकी पोल जो है वो अब खुल चुकी है। Dam building industry in the first world is out of work, so it is exported to the third world in the name of development aid along with their other waste like old weapons, superannuated aircraft carriers and banned pesticides. और बड़े ही
बड़े आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिक्स के साथ एंड में वो कंक्लूड करती हैं एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड में, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो जो विकसित देश हैं, वहाँ पर इन बांधों की सच्चाई सामने आ चुकी है कि किस प्रकार से ये हमारे जीवन के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। इसीलिए बड़े बड़े जो बिजनेस इन पर टिके हुए थे अब वो बंद हो चुके हैं। तो अब क्या हुआ, इनको थर्ड वर्ल्ड में, यानी कि जो विकासशील और जो पिछड़े देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनमें इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। किस नाम पर? इनकी सच्चाई नहीं बताई जा रही है कि ये कितने हमारे पर्यावरण के लिए किस तरीके से नुकसानदायक हैं, बल्कि इन्हें डेवलपमेंट एड के नाम पे कि आपके देश का विकास होगा बांध बनाने से, ये कह करके इनको डैम बिल्डिंग इंडस्ट्री को थर्ड वर्ल्ड में स्थापित किया जा रहा है। और किस तरीके से, बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स आपको देती हैं अरुंधति रॉय। वो कहती हैं बहुत सारा जो और वेस्ट मटेरियल है, लाइक ओल्ड वेपन्स, जो हथियार पुराने हो जाते हैं तो विकसित देश उन्हें पिछड़े देशों को बेच देते हैं, या जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो उनके काम के नहीं रहते उन्हें वो पिछड़े देशों को बेच देते हैं। एंड बैंड पेस्टिसाइड्स की, यानी कि जो कीटनाशक जो विकसित देशों में बैन हो चुके हैं, वो उस वेस्ट मटेरियल को पिछड़े देशों में बेचना शुरू कर देते हैं। सो इन दिस वे अरुंधति रॉय presents a critique of the dam building industry in India, and she concludes that how these big dams are not the temples of modern India. So this is how she concludes. Now you have to think about it. Is it good? Is it bad? Are dams the temples of modern India or not? So think about it, discuss it with your friends, and keep learning, keep doing hard work, and still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Thank you so much.